मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा. Dear students and my honorable viewers of Shaheen Leaders Academy, welcome to our academy for free education online and through video recording. You must be having a good opportunity to learn a lot from the faculty of Shaheen Leaders Academy. So today we are going to take a new video which is consisted on the very important, very important questions which are being repeated for the selection of Pakistan Air Force Airmen in the Airman test of mathematics. So today we have prepared a video of such 25 questions which has been extracted, which has been obtained, and the video is being made for you people to learn a lot. Inshallah, after watching this complete video, you will be in a position to produce yourself very good results in your forthcoming mathematics papers. So our faculty has put its level best by consulting the syllabus of 9th and 10th class of mathematics, and have prepared very important questions for the students to be taken in the examination. Or inshallah ta'ala aziz, such questions will give you more assistance in the solution of your mathematics papers. So we shall proceed without any delay to our video mathematics test number 2, which has specifically been prepared for the technicians of Pakistan Air Force as well as aerosports, including the ISSB candidates who want to appear in the commissioning exam, including their initial test as well as their ISSB selection. Here we have also seen the word of airwoman as well as the subject of mathematics is concerned, which is not the part and parcel or the syllabi of the airwoman for Pakistan Air Force. Those students, female students, our respectable daughters who have applied for medical assistant in Pakistan Air Force, they will not be in a position, and this subject is not applicable to them of mathematics. It's only for the aero trades and certain such trades like you can say sportsmen who will also appear in the mathematics, like PFNDI, physical fitness and drill instructor. They will have to appear this mathematics test, and all aero trades, including technical and non-technical. So I have told you that this video is very useful for those who are appearing in the mathematics test for aero trades, physical fitness and drill instructor, PFNDI, and sportsman. Rest, this subject is not applicable to the ground combatiers, provost NCOs, mechanical transport driver, and airwoman for joining Pakistan Air Force as an airman or as airwoman. So all those who has applied in aero trades and as a PFNDI, as a sportsman, so this mathematics test is very useful for them. So today we have invited the faculty and the very learned, you can say the pedagogue of our Shaheen Leaders Academy, who will deliver this mathematics lecture to you people, or inshallah after the watching this video you will be fully prepared for your mathematics test. Let's proceed to the question number 1 of mathematics test number. Over to the learned faculty of mathematics, Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi. They will start from the question number 1. So class, let's start from question number 1, and the question number 1 is choose the correct option. Question number 1 is A union bracket B intersection C is equal to. क्लास बेसिकली ये हमारे पास सेट्स के क्वेश्चन हैं, और ये A यूनियन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, आपको पता होगा आपने 9th में 10th में सेट्स के क्वेश्चन किए होंगे, और उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम होता है, उसे हम कहते हैं डी मोवियर थ्योरम. डी मोवियर थ्योरम की क्लास 2 से 3 स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर ए स्टेटमेंट डिस्कस की गई है, दैट इज़ ए यूनियन
इनटू बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा। तो क्लास आप लोग नोट कर लें कि जब ऐसा आप लोगों ने सबसे पहले तो डी मॉर्गन थ्योरम की जितने भी 2 से 3 स्टेटमेंट्स हैं वो आप सबको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि कि पेपर में कुछ भी आ सकती हैं, स्पेसिफिक नहीं है कि ये एज इट इज़ यही वाला क्वेश्चन आपके पास आएगा, कुछ और स्टेटमेंट्स भी वो दे सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा। ये रूल होता है कि जो ए यूनियन बी होता है, जो पहले अब जो ए यूनियन है वो पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या क्या हो जाएगा, बी के साथ मल्टीप्लाई होगा ए यूनियन बी, बीच में इंटरसेक्शन का सिंबल एज इट इज़ रहेगा, एज इट इज़ रहने के बाद अब जो ए यूनियन सी हो जाएगा। सो अब हम अपने ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हम देखें तो ए यूनियन बी है, यू और सेंटर में यूनियन है। मैंने कहा कि सेंटर में यूनियन नहीं इंटरसेक्शन होना चाहिए। हम ऑप्शन नंबर बी में आते हैं, यहाँ पर हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है। अब हमारे पास हमारा आंसर हमें मिल गया है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। चले हम आगे भी दो नेक्स्ट ऑप्शन सर्च देख लेते हैं। अब देखें ऑप्शन नंबर सी दोनों में इंटरसेक्शन है, ये तो ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर डी में देखें ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाली बात भी आपके पास गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट हेयर। अगेन मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात कहूँगा कि जो आप लोगों ने 9th-10th में सेट्स पढ़े हैं उनमें डी मॉर्गन थ्योरम्स है, डी मॉर्गन लॉ है, ऐसे लॉ जो वहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं वो आपको उनकी डेफिनेशन और उनकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको ज़रूर आनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट हेयर। Next class moves towards question number 2. Question number 2 is if r is equal to 0, 1, 1, 2 and 3, 4 is a binary relation, then its range r is। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको पता हो कि व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज, क्यों ना कि उन्होंने हमसे पूछा है कि रेंज क्या होती है। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले पता हो कि भाई रेंज क्या है, रेंज के साथ साथ हमारे पास डोमेन का भी कंसेप्ट हो। तो मैं आज आपको डोमेन और रेंज की एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ। डोमेन हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, और रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। अगर आपके पास ए सेट दिया हुआ है, जैसे ये हमारे पास गिवन है 0,1, 1,2, 3,4, ये हमारे पास ये सेट गिवन है और हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो मैंने आपको क्या क्या, रेंज क्या होती है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, और डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। लेकिन एज फॉर दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, सो वी हैव टू फाइंड ओनली इट्स रेंज। तो रेंज क्या होगी, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। अब हम देखते हैं सेकंड एलिमेंट्स कौन से हैं। फर्स्ट वाले में देखें तो हमारे पास 1 है, अगले में देखें 2 है, और जो थर्ड वाले में देखें तो हमारे पास 4 है। इसका मतलब जो हमारी रेंज होगी, रेंज क्या होगी, 1, 2 और 4। अभी हम अपने ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 0, 1, 3, ये तो गलत हो गया। अगला देखें 1, 2, 3, ये भी गलत है। अगला देखें 2, 3, 4, ये भी गलत है, रॉन्ग है। और जो ऑप्शन नंबर डी है 1, 2, 4, ये बिल्कुल हमारे पास करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट हेयर। प्रोसीड टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है ये, इफ बी इज रियल नंबर। उसने क्या, अगर बी हमारे पास एक रियल नंबर है, देन पॉइंट 0, बी लाइज ऑन डैश क्वाड्रेंट। अभी हमने बताना है जो हमारे पास पॉइंट 0, बी है, ये किस क्वाड्रेंट में है, 0, बी। अब देखें आप लोगों को इतना तो पता होगा कि क्वाड्रेंट्स में जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी डायग्राम, कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं तो हमें उसका सबसे पहले तो एक्स कंपोनेंट पता होना चाहिए, फिर हमारे पास उसका वाई कंपोनेंट भी पता होना चाहिए। अभी हम देखें यहाँ पर जो हमारा एक्स कंपोनेंट है वो 0 है, और जो हमारे पास वाई कंपोनेंट है वो बी है। अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो जब x 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है कि वो ओरिजिन पर है। x का मतलब क्या है कि वो किधर है, ओरिजिन पर है। ये आपके पास x पॉजिटिव होता है, ये आपके पास x नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है, और ये y नेगेटिव होता है। x 0 का क्या मतलब है, ये x 0 है ना, x 0 का क्या मतलब है कि ये x हमारा ओरिजिन पर है। ओरिजिन ये होता है, ये आपके पास क्लास ओरिजिन है। ये हमारे पास ओरिजिन है, मीन x यहाँ पर 0 है, और y हमारे पास b है। b होने के साथ साथ वो हमारे पास पॉजिटिव भी है, b होने के साथ साथ हमारे पास वो पॉजिटिव भी है। लेट्स सपोज मेरे पास b पॉइंट इधर है, सो जो यहाँ पर मेरा पॉइंट होगा वो होगा 0, b। अब आप खुद यहाँ से देख के बता लें कि ये किस में है, ना तो ये फर्स्ट, ना तो ये ऑप्शन की तरफ हम मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सेकंड क्वाड्रेंट, नहीं भाई सेकंड क्वाड्रेंट में तो नहीं है।
थर्ड क्वाड्रेंट में भी नहीं है। वाई एक्सिस, ये देखें ना, ये हमारा पॉइंट वाई एक्सिस पर आ गया ना। सो हमारे पास सी ऑप्शन इज द करेक्ट हेयर एंड डी ऑप्शन एक्स एक्सिस ये भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज वाई एक्सिस इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट प्रोसीड टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन नंबर 3। आपको उन्होंने कहा है इफ एक्स वाई जी आर रियल नंबर, आपको बता दिया है कि एक्स वाई और जी अगर रियल नंबर है देन इन, अब आपके पास ऑप्शन, हम ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन में हमें क्लास 4 डिफरेंट काइंड की प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। ये हमारे पास जो 4 की 4 है ना, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर आप अपनी 9th और 10th की बुक देखें तो उसमें आपके पास होप्स हो कि चैप्टर नंबर 1 है या 2 है, जो सेट्स वाला चैप्टर है, उसमें आपके पास क्लास ये वाली भी, आप जो ये वाली भी हैं, उन्होंने आपको ये 4 की 4 प्रॉपर्टीज़ भी समझाई हुई हैं। अब हम आप देखते हैं कि हमारे पास एक्स वाई जी रियल नंबर है, ये हमें गिवन है। देन इन चारों में से हमारे पास कौन सी, इन 4 की 4 में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सो क्लास आप लोग देखेंगे, आप लोग, मैं आपको लाजमी कहूँगा कि आप लोग अपनी 9th की मैथ की बुक और 10th की मैथ की बुक में इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जो सेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो नोटेशंस हैं सारी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास डिमोवियर थ्योरम आया हमारे पास, ऐसी आप लोगों को कम से कम ऐसी चीज़ें क्लास लाजमी आपके फिंगर टिप्स पर आपको याद हो, क्यों ना एग्ज़ाम में आपके पास क्लास बहुत कम टाइम होता है, ओनली 20 to 25 सेकेंड्स में आपने एक MCQ सॉल्व करना होता है। और अगर उधर आप सोचना शुरू कर देंगे तो उससे आपका टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा। अब आप देखें तो अब जब आप उन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक दफ़ा रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे ये जो ऑप्शन नंबर ए वाली प्रॉपर्टी है, एक्स इंटू वाई जी इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स वाई, ये आपके पास करेक्ट होगा, ये आपके पास प्रॉपर्टीज उधर मौजूद होगी। सो इस वजह से हमारे पास क्लास ए इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट प्रोसीड टुवर्ड क्लास अवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहे हैं द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आर। फैक्टर्स बनाने का मतलब क्या होता है, हम फैक्टर्स क्यों बनाते हैं। मिड टर्म फैक्टर हमारे पास कब बनते हैं, जब हम जो बीच में गिवन होता है एक्स के साथ उसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। फैक्टर हम तब बना फैक्टर हम तब बनाते हैं द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आर। उन्होंने कहा है इसके फैक्टर क्या होंगे। अब हम इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, हम इसके फैक्टर इसकी मिड टर्म ब्रेक करके बनाएंगे, हम इसके फैक्टर इसकी मिड टर्म ब्रेक करके बनाएंगे। सो हमारे पास है सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की क्लास आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब आप देखें तो आपके पास सबसे लास्ट में 6 है, ये 6 जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी होगा, जो लास्ट हमारे पास कांस्टेंट होता है, लेट्स मेरे पास 6 है, लास्ट में जो आपके पास होगा, मेरे पास 6 यहाँ पर गिवन है, उससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा जो जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर गिवन होगा। तो आप इस क्वेश्चन में देखें, एक्स स्क्वायर के साथ आपके यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 6 है। जब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास 6 हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ जी 6 पर कौन सा टेबल जानता है जो यहाँ पर सूटेबल आ जाए। तो जब मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास 6 हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक करता हूँ। इसकी मिड टर्म मैं कैसे ब्रेक करूँगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, अब x कॉमन, या देखें एक्स स्क्वेयर इधर भी है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हो गया। अब हम देखते हैं इन फर्स्ट इन 2 में से कॉमन लेते हैं और इन 2 में से कॉमन लेते हैं। अब इसमें भी x कॉमन है, x में भी एक्स स्क्वेयर है और यहाँ पर x है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x हमारे पास कॉमन है। सो हमने x कॉमन ले लिया, ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर बन गया -3 हो गया -3। अब यहाँ से हम देखें -2x प्लस 6 है, इन -2x प्लस 6 में हमारे पास 2 कॉमन है, क्यों ना कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है। इस वजह से मैं यहाँ पर -2 कॉमन लूँगा, इनटू x -3 हो जाएगा, x -3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या फैक्टर इसके बनेंगे, x -3 और x -2, ये हमारे पास इनके दो फैक्टर हैं।
सो हम अब अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है x+1 x-6। हमने सॉल्व करके देख लिया, मैंने आपके सामने सॉल्व भी किया और आप लोगों ने देख लिया कि x-3 और x-2 इज द करेक्ट फैक्टर्स हियर। सो बी ऑप्शन x-2 x-3 आपके पास करेक्ट है। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी आपके पास रॉन्ग है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द नंबर whose sum is -13 and the product is -30 are। कुछ क्वेश्चन क्लास आपके पास ऐसे होते हैं जिनमें आप स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं और तब आपके पास आंसर आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम पहले ऑप्शंस की तरफ जाते हैं और बाद में हम देखते हैं कि हमारी स्टेटमेंट में क्या गिवन है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम एक मेथड का नाम लेते हैं, उसे हम कहते हैं बैक सॉल्व करना। मतलब हम आंसर से जाते हैं और मतलब हम आंसर्स को देखते हैं और फिर देखते हैं कि भाई हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब इस क्वेश्चन में आप देखें, उसने उसने लिखा है फाइंड द नंबर्स whose sum is -13 and the product is -30। अब उसने हमें बता दिया है द नंबर whose sum is -13। ऐसे दो नंबर जिसका सम -13 हो। अब आप इधर देखें, अब आप 2 और 15 आपके पास गिवन है। 2 और 15 को जब आप ऐड करेंगे ना, ये आपके पास 17 बन जाएगा। लेकिन 2 और -15 को आप करें, क्या आ जाएगा? -13 आ जाएगा। तो -3 में आप जब 10 ऐड करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा और 3 के अंदर -10 ऐड करेंगे तो -7 आ जाएगा। अब देखिए हमें पता चल गया ना, -13 इधर ही है तो डेफिनेटली -30 भी इधर ही होगा। अब चलें ऑप्शन की तरफ चलें, देख लेते हैं जी कि -30 किधर बनता है। अब 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें हम तो 30 बन जाता है। क्यों ना कि हमारे पास अगली कंडीशन क्या है? सम वाली कंडीशन तो हमारे पास होगी है। अब प्रोडक्ट वाली कंडीशन पर हम जा रहे हैं। प्रोडक्ट इज -30। पहले में हमने देखा 30 आ गया, लेकिन दूसरे में जब हम देखेंगे तो हमारे पास -30 आ जाएगा। सो -13 और -30 ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन है। 2 और -15 को जब हम ऐड करेंगे तो -13 बन जाएगा, लेकिन 2 और -15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -30 बन जाएगा। सो क्लास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हेयर, दैट इज 2 इंटू -15। रिमेनिंग ऑप्शन ए ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन आर द रॉन्ग हेयर। और साथ मैंने आपको एक करके भी दिखा दिया कि किस वजह से 2 और -15 आया और बाकी क्यों नहीं आ सके। नेक्स्ट मूव टुवर्ड क्लास अवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ 8x³ + 27y³ इज इक्वल टू। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको कहा था कि आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। कौन कौन से फार्मूले थे? a + b² a - b² a² - b² a + b का होल क्यूब a - b का होल क्यूब a³ + b³ a³ - b³। ये फार्मूलेज आपके फिंगर टिप्स पे हर टाइम होने चाहिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया तो आप इसे सॉल्व करने बैठ गए तो ये तो फिर टाइम आपका इधर ही कंज्यूम हो जाएगा, इस तरह बाकी एमसीक्यूज आपके रह जाएंगे। इसलिए आपको ये अपनी फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। अब हम ये आपके पास गिवन है 8x³ + 27y³ 8x³ + 27y³। ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ कि जो मेरे पास ए है। अब देखें जो 8 है ना आपके पास, वो 2 का 8 आपके पास 2 का क्यूब है और x का क्यूब x³ होता और x का क्यूब x होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 27y³। 27 क्या है? 27 बेसिकली 3 का क्यूब है और जब हम y है तो y का क्यूब हमारे पास 5³ होता है। इसलिए मेरे पास यहाँ पर जो a है, a मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x और b मेरे पास क्या आ जाएगा? 3y। अच्छा, 8x³ + 8x³ + 27y³। मैंने 8x³ की जगह मैंने क्या 8x³ की जगह मेरे पास क्या, जब मैंने a को 2x और b को 3y ले लिया तो मेरे पास 8x³ की जगह क्या आएगा? a³ और 27y की क्यूब की जगह मेरे 27y3 की जगह मेरे पास क्या आएगा? b³। a³ + b³ का फार्मूला होता है a + b a² - ab + b²। अब हम देखते हैं a मैंने क्या लिया था? a मैंने 2x लिया था। b मैंने क्या लिया था? 3y लिया था। a² हमारे a मेरे पास क्या गिवन था? a मेरे पास 2x गिवन था, मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ माइनस a मेरे पास क्या गिवन था? 2x। b मेरे पास क्या गिवन है? 3y प्लस b का स्क्वायर। b मेरे पास क्या है? 3y, मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ। अब ये हमारे अब ये हमारे पास क्या आएगा? हमने a क्या लिया था? 2x लिया था। b हमने क्लास 3y
लिया था, 3y लिया था। अब ये देखें 8x क्यूब, 8x क्यूब किसका क्यूब हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये इक्वल होता है a प्लस b, a प्लस b ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब आपके पास यहाँ पर a कितना है, a आपके पास यहाँ पर है 2x प्लस b कितना है 3y, 2x प्लस 3y इंटू a का स्क्वेयर, 2x का स्क्वेयर आपके पास कितना हो जाएगा 4x का स्क्वेयर माइनस a और b को मल्टीप्लाई कर दें, a आपके पास 2x है और b आपके पास 3y है, तो कितना हो जाएगा बेसिकली माइनस 6xy प्लस b आपके पास 3y है, तो आप जब 3y का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा 9y का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्लास ऑप्शन, अब हम ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2x प्लस 3y इंटू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमने सॉल्व करके भी देख लिया है कि हमारे पास जिस ऑप्शन के अंदर 2x प्लस 3y इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9 स्क्वायर होगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज 2x प्लस 3y इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इज द करेक्ट हेयर। So class, next move towards our question number 8. Question number 8 is the HCF of a square minus ab plus b square and a cube plus b cube is। अब देखें फिर वही a क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। HCF हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM में टर्म होती है उसे हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF में जो हमारे पास हाईएस्ट फैक्टर होता है जो किसी भी नंबर पर डिवाइड हो जाए वो हम लेते हैं, और LCM में हम नंबर को, और LCM में हमारे पास लोवेस्ट नंबर जब तक हमारे पास वो ज़ीरो ना दे दे तब तक हम उसे डिवाइड करते रहते हैं। अब हमारे पास द HCF ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज। अब आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला तो बता दिया है, वो आपके पास क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये तो एज इट इज़ है, लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब के जब मैंने फार्मूला ओपन किया है तो मेरे पास बना है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब में भी क्या चीज़ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जो HCF हमें गिवन है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ये वाली चीज़ मौजूद है, इस वजह से ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। सो हम अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ए प्लस बी, और ये हमारे पास रॉन्ग है क्यों ना कि मैंने आपको साथ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करके दिखा दिया, और यहाँ से आप देख भी लें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी आपके पास मौजूद है और यहाँ पर भी आपके पास मौजूद है, इसका मतलब यह है कि ये यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज द करेक्ट हियर, द रिमेनिंग ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग। Next move toward our question number 9 that is the LCM of a minus b square and a minus b whole cube is। अब देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया कि HCF और LCM का आपको पता हो। LCM क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम a माइनस बी है, अब a माइनस बी के स्क्वायर का क्या मतलब है कि a माइनस बी, मैं इधर इस क्वेश्चन से मैं इधर इसे ओपन नहीं करता, मैं इसे एज इट इज़ a माइनस बी का स्क्वायर रहने देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट मेरे पास a माइनस बी का क्यूब है। अब a माइनस बी के क्यूब को a माइनस बी का जो क्यूब है उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना a माइनस बी इंटू a माइनस बी का स्क्वायर, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना क्योंकि आपको पता है ये मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी है कि जब दो सेम नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उन दोनों की पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। एक माइनस ए माइनस बी भी एक नंबर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी एक नंबर है, ए माइनस बी दोनों तरफ सेम नंबर है।
दोनों सेम नंबर हैं, लेकिन a माइनस बी की जगह पे पावर 1 है, एक जगह पे पावर 2 है। इस वजह से जब बेसिस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन की ये प्रॉपर्टी है कि जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब आप देखें यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर भी है, यहाँ पर भी a माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हम लिख देते हैं जी a माइनस बी का स्क्वायर। लेकिन a माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इसका एचसीएफ आया है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एलसीएम गिवन है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट आप देखें तो यहाँ पर a माइनस बी भी है, a माइनस बी भी इसके साथ आएगा। अब मैंने आपको पीछे प्रॉपर्टी में थोड़ी देर पहले बताया है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इन दोनों की बेसिस सेम है तो इन दोनों की पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। जब इन दोनों की पावर को मैं ऐड करूंगा तो वो आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा। सो ऑप्शन हम ऑप्शन नंबर की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज a माइनस बी, ऑप्शन नंबर बी इज a माइनस बी का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज a माइनस बी होल क्यूब। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हियर एंड ऑप्शन डी इज आल्सो रॉन्ग। Next, proceed toward our question number 10. Question number 10 is the solution. Question number 10 is the solution set of स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 7। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो बेसिकली जब हम सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं तो बेसिकली हम वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब आप देखिए आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 7 है। अब हमें x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, लेकिन माइनस 4 भी इसके साथ है। ये माइनस 4 राइट हैंड साइड पे जाके प्लस 4 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 प्लस 4 11 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 11 आ गया। अभी हमें स्क्वायर रूट ऑफ x नहीं, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो जो x के ऊपर स्क्वायर रूट है वो तो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर आपके पास क्लास 121 होता है। सो x इज इक्वल टू 121। अब अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन की तरफ मूव करें तो ऑप्शन नंबर ए है 135, हमने सॉल्व करके देखा ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी 121, ये यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी भी पॉसिबल नहीं है। सो हमने सॉल्व भी करके देखा और मैंने साथ एक्सप्लेन भी किया आपको, और हमारे पास ये बात साबित हो गई कि जो ऑप्शन नंबर बी है 121 इज द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट मूव टुवर्ड क्लास अवर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हिल द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉड ऑफ 5x इज इक्वल टू 10। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये बात आप लोग काइंडली लाजमी नोट कीजिएगा कि जब भी हम मॉड के साइन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। मॉड के साइन को जब भी हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। अब एक आपके पास इसमें बनेगा प्लस 5x इज इक्वल टू 10 और दूसरा बनेगा माइनस 5x इज इक्वल टू 10। और ये प्लस माइनस क्यों आया है मैंने आपको शुरू में बता दिया है। अब प्लस 5x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और जब माइनस 5x इज इक्वल टू 10 होगा तो हमारे पास x की वैल्यू -2 आ जाएगी। सो ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं, नहीं हमने कहा एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज -2 एंड +2 इज द करेक्ट हेयर। द रिमेनिंग सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। Next class, move toward question number 12. Question number 12 is multiplicative inverse of a can be written as। अब हमारे पास ये लिखा है कि multiplicative inverse of a can हम किस तरह लिख सकते हैं। a है बेसिकली, हम a इनवर्स हम कैसे लेते हैं। a इनवर्स या तो हमारे पास इक्वल होता है a इज इक्वल टू 1 ओवर a का, या हम इसे कहते हैं a इज इक्वल टू 1 अपॉन a, या हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं तो a इज इक्वल टू, तो a के ऊपर पावर में हम -1 लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि a का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हमारे पास a की पावर -1 है। तो हम अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, हमने क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी आपके पास ए मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है वो भी गलत है। सी आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है वो भी गलत है, और ऑप्शन नंबर डी है ए रेज टू द पावर -1, ये भी ठीक है। या हम इसे अक्सर केसेस में 1 ओवर ए भी लिखते हैं। ये भी आपको पता हो कि अगर यहाँ पर ए की पावर -1 की जगह
1 ओवर ए आ जाए तो आप लोगों ने इतना घबराना नहीं है, आप लोगों ने सीधा उस ऑप्शन को करेक्ट कर देना है, क्यों ना कि मैंने आपको बता दिया है ए पावर माइनस वन भी और और 1 ओवर ए का भी एक ही मतलब है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हेयर। Next, move toward our question number 13. Question number 13 is the solution set of x is equal to minus x is. अब देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे x पॉजिटिव के साथ है और राइट हैंड साइड पे माइनस के साथ है। अब ये जो माइनस आपके पास राइट हैंड साइड पर है ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। जब ये दूसरी तरफ जाके प्लस होगा तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x होता x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x होता है और यहाँ 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब हम 0 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास बेसिकली 0 आंसर दे देगा। इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स क्या हुआ, 0 हुआ। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हेयर। Next, move toward our question number 14. Question number 14 is the solution set of square root of x is equal to 4 is। दस देखिए solution set जहाँ भी आया है मैंने वहाँ पर x की वैल्यू ही कैलकुलेट की है। अब यहाँ पर आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग लिखेंगे आप लोग, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो जो हमारे पास x के ऊपर स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 16। अब हम अपने ऑप्शन की, हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 16। हम अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 4 है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास 16 है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी 2 है, ये भी रॉन्ग है। और ऑप्शन नंबर डी है -16, ये भी आपके पास रॉन्ग है। सो क्लास ऑप्शन नंबर बी या सेकंड ऑप्शन दैट इज 16 इज द करेक्ट हेयर। Next, move toward our question number 15. Question number 15 is the order of A B matrix X। अब देखिए कि आप लोगों के ऑर्डर के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं और ऑर्डर में सबसे पहले याद रखें हम रो को कंसीडर करते हैं फिर कॉलम को कंसीडर करते हैं। ऑर्डर लिखने के लिए एक फार्मूला है, फार्मूला ये है कि R इंटू सी, आर इंटू सी। आर इंटू सी का क्या मतलब है, आर रो होता है और सी हमारे पास कॉलम होता है। आर मल्टीप्लाई बाई सी इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए ये सिंपल सी ट्रिक है जो आप लोगों ने याद रखनी है। क्या ट्रिक क्या है, आर मल्टीप्लाई बाई सी। यहाँ पर आर जो है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और सी हमारे पास कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं आपके पास जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उन्हें हम रोज कहते हैं और जो वर्टिकल होते हैं उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। अब हम हॉरिजॉन्टल में देखें तो ए और बी एक ही हमारे पास रो है, लेकिन हम वर्टिकल में देखें तो हमारे पास ए और बी दो कॉलम्स हैं। इसका मतलब है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, 1 इंटू 2 हो गया। क्यों ना कि मैंने आपको वो फार्मूला बता दिया है कि रो इंटू कॉलम लिखते हैं तो रो हमारे पास 1 है और कॉलम 2 है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1 क्रॉस 2 इज द करेक्ट हियर। रिमेनिंग ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग। नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज अ डैश टाइप ऑफ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर बेसिकली आपके पास होती है पावर। ऑर्डर बेसिकली आपके पास होती है पावर। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होती जब ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता, तब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती। अब अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं क्लास। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि उसमें हमारे पास जो एक्स की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा वर्थ हो गया। ऑप्शन नंबर बी की तरफ मूव करते हैं, वो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। क्वाड्रेटिक तब होती जब ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्डिनरी इक्वेशन हम इसे कहते हैं। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज द सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्डिनरी इक्वेशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हेयर। द रिमेनिंग ऑल ऑप्शन दैट इज ए बी एंड डी आर रॉन्ग हेयर। नेक्स्ट प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज अ डैश टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन।
अब मैंने आपको पीछे बताया है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। अब इसमें आप देख लें एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हेयर। द रिमेनिंग ऑल ऑप्शन दैट इज ऑप्शन बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सी ऑर्डरिंग इक्वेशन एंड डी none is wrong here. So option number A is the option number A linear equation is the correct here. Next, proceed toward our question number 18. Question number 18 is if x minus t square is equal to 0 and y is equal to t cube, then eliminate t. अब उन्होंने क्या है, if x minus t square is equal to 0 है और y is equal to t cube है, तो यहाँ से आप a को एलिमिनेट करें। एलिमिनेट करने का मतलब होता है कि इसे यहाँ से रिमूव करें। अब x माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो माइनस टी स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाके प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा और y इज इक्वल टू टी क्यूब आपके पास गिवन है। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू टी क्यूब हो जाएगा। अब हमने यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो आप हमने इसे यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो जो आपके पास x होगा वो आपके पास एक्स क्यूब के इक्वल हो जाएगा और जो आपके पास y होगा वो y स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज एक्स क्यूब इज इक्वल टू y स्क्वायर इज द करेक्ट हेयर। The remaining all option that is option number A, option number C and option number D are wrong here. Next, proceed toward question number 19. Question number 19 is y is equal to log x to the base a in exponent form. Write y is equal to log x to the base a in exponent form. अब हमने इसे एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर लिखना है। आप लोग एक बात नोट करें कि लॉ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, और ये आपके पास है 9th की बुक में चैप्टर नंबर 3 है, उसमें ये सब कंसेप्ट आपके पास लिखा हुआ है। तो ज़रूर मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक दफ़ा इन सब प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लें, क्योंकि कि पेपर कोई स्पेसिफिक नहीं है कि पेपर में एज इट इज़ ये क्वेश्चन आएंगे, आपसे कोई और भी प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। सो आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से याद कर लें। अब हमने इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए को हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपोनेंट फॉर्म में क्लास में आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि ये जो हमारे पास ए होता है ना, ए ये हमारे पास ये जो इधर जो भी नंबर होगा ना हमारे पास राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो भी नंबर होगा ये इस ए की पावर बन जाती है, ये इस नंबर की पावर बन जाती है। सो ए पावर ए नंबर है और y जो यहाँ पर है ये इसकी पावर बन जाएगी, a पावर y इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब ये मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई है। ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है कि यहाँ पर बेस होगी, बेस आपके पास जो भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन होगा, जो भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन होगा ये बेस उस जगह पे चली जाएगी और वो जो लेफ्ट साइड पे नंबर होगा वो इसकी पावर बन जाएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर लिखा होता है 2 इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस 10। अब मैंने आपको क्या कहा है कि जो यहाँ पर नंबर होगा ये इस बेस की पावर बन जाएगा, यहाँ पर जो भी नंबर होगा ये इस बेस की पावर बन जाएगा। इस बेस क्या है 10 और जो नंबर इसकी पावर बन जाएगा 2, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से पास x, यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। बस आपने इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मैंने आपको ट्रिक बताई है वो आप लोगों ने याद करनी है। सो हम अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है y पावर a इज इक्वल टू x, हमारे पास रॉन्ग है। बी ऑप्शन है x पावर a इज इक्वल टू y, ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन है a पावर y इज इक्वल टू x, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। और डी ऑप्शन हमारे पास है a पावर x इज इक्वल टू y, ये भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज a पावर y इज इक्वल टू x इज करेक्ट हियर। रिमेनिंग ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग हियर। नेक्स्ट प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास क्या कहता है, log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। इफ log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या ट्रिक बताई थी कि ये जो यहाँ पर नंबर होगा ये इस बेस की पावर बन जाएगा, इस बेस की पावर बन जाएगा। बेस हमारे पास 10 है, ये वाला नंबर इसकी पावर बन जाएगा और ये किस इक्वल आ जाएगा, इस x इक्वल आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू
1000 हो जाएगा। अब देखें एक छोटी सी आपके पास ट्रिक है और इस ट्रिक के अंदर हमने विद इन 5 to 6 सेकंड, विद इन मैक्सिमम 5 to 6 सेकंड हमने इसको सॉल्व कर लिया है। सब अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ए 500 है, ये भी आपके पास रॉन्ग है। बी 10/10^3 है, ये भी आपके पास रॉन्ग है। सी आपके पास 700 है, ये भी रॉन्ग है। और ऑप्शन नंबर डी आपके पास 1000 है, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हियर। द रिमेनिंग ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग हियर। नेक्स्ट प्रोसीड टुवर्ड अवर क्लास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब उन्होंने कहा है जब हम a प्लस बी का स्क्वायर को ऐड करें और a प्लस बी स्क्वायर को ऐड करें और a माइनस बी स्क्वायर को ऐड करें तो वो आपके पास किसके इक्वल आते हैं। अब देखें यहाँ पर हमें दोबारा फार्मूले की ज़रूरत पड़ी है, इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग मैक्सिमम अपने फार्मूले तो कम से कम याद करें। जैसे a प्लस बी a माइनस बी है, इतने लेंथी फार्मूले। आप लोग एक बात याद रखें कि ये जो आर्मी एयरफोर्स नेवी के जितने भी टेस्ट हैं ना, इनमें कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं आते जो आपको पूरे पूरे सॉल्व करने पड़ते हैं, 5 to 10 मिनट्स लगाने पड़ते हैं। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, एमसीक्यूज टाइप आएंगे। आपने आपको ए की वैल्यू भी कोई छोटी सी गिवन होगी, बी की वैल्यू भी, वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है कि आप कम से कम मिनट में कितने से कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, ना कि ये देखा जाता है कि आप कितने लाइक हैं और आपको क्या से क्या आता है। अब ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर है। ए प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। और ए माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखें अब ए प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में और ए माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में दो चीज़ें तो कॉमन है। वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास इन दोनों में कॉमन है। लेकिन a प्लस बी के फार्मूले में हमारे पास प्लस के साथ 2ab आता है और a माइनस बी के फार्मूले में माइनस 2ab के ab आता है। इस वजह से ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला a प्लस बी के स्क्वायर के में वाले फार्मूले में जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ये जब ऐड होगा जो a माइनस बी के स्क्वायर वाले फार्मूले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आते हैं, तो आप देखेंगे ये a स्क्वायर यहाँ पर भी है, a प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में भी है और a माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में भी है। तो आपके पास 2a स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली जो b स्क्वायर है ये a प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले में भी पॉजिटिव है और a माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले के अंदर भी पॉजिटिव है। तो जब तो आप दोनों को हम प्लस करेंगे तो वह हमारे पास हो जाएगा 2b स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर, हम अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 4ab। हमने सॉल्व करके देखा ये 4ab तो नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर बी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने सॉल्व करके दिखाया, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये हमारा सबसे बेस्ट और एक्यूरेट आंसर है। डी ऑप्शन है हमारे पास 2ab, ये भी हमारे पास रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज 2a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट मूव टुवर्ड क्लास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास क्या गिवन है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू भी गिवन है और एक्स वाई की भी गिवन है, लेकिन आपने फाइंड किसकी करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या अदर वर्ड आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। हम एक काम करते हैं, लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम x प्लस वाई के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो जो यहाँ पर प्लस 2xy है ये दूसरी तरफ जाके माइनस 2xy हो जाएगा। अब आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 2xy हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 2 और एक्स वाई की वैल्यू आपके पास 15 गिवन है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 30 हो जाएगा। 64 में से जब आप 30 माइनस करेंगे तो आपके पास 34 हो जाएगा। अब हम ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 94 जो हमारे पास रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास 34 है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ऑप्शन नंबर सी 49 है वो भी आपके पास रॉन्ग है और डी 38 वो भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हेयर।
नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्लास क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज वैल्यू ऑफ x प्लस 2 और इंटू एक्स माइनस 3। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब x प्लस 2 को हम x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। आप लोगों को याद हो, बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है, लेकिन हमने उसमें क्या किया है, हमने उसके फैक्टर बनाए थे। लेकिन अभी हमने बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 2 और x माइनस 3। जब हम x प्लस 2 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। अब देखें, मल्टीप्लाई तो आप सबको करना आता होगा। यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में x गिवन है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 3 के साथ। फिर जो प्लस 2 है, ये दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब हम x को x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। वो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा 2x माइनस 3। ये हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब देखें, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3x प्लस 2x हमारे पास ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 6। ये आप लोगों के सामने मैंने बिल्कुल सारा सॉल्व कर दिया है। तब अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। हमने सॉल्व करके देखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए हमारे पास रॉन्ग है। ऑप्शन बी पे जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 है, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हमारे पास करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर डी है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, ये भी आपके पास रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज द करेक्ट हियर। ऑप्शन नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास ये है कि द एलसीएम ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए माइनस बी इज। अच्छा, एलसीएम आपके पास ये होता है, एलसीएम आपके पास होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले को ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। जब आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें हमने इस फार्मूले को ओपन किया है और ये भी हमारे पास एक a माइनस बी है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमारे पास क्या होगा, a माइनस बी उधर भी है और ये माइनस बी इधर भी है, तो ये इनमें से कॉमन आ जाएगा। ये हमारे पास आएगा a माइनस बी इंटू लीस्ट कॉमन मल्टीपल ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सो आप देखें ए स्क्वेयर माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर आपके पास है। अब आप देखें ये ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये तो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। सो हम अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है ए, फर्स्ट ऑप्शन है ए माइनस बी, ये हमारे पास वर्थ है। डी ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है ए प्लस बी, ये भी वर्थ है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर डी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आपके पास वर्थ ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज द करेक्ट हियर, द रिमेनिंग ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग हियर। Next move toward our question number 25. Question number 25 is the LCM of a4 minus b4 and a square plus b square is। अच्छा, पहले आपके पास है a4 माइनस b4 एंड दूसरा है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। अब a4 माइनस b4, बेसिकली a4 क्या होता है a स्क्वेयर का स्क्वेयर और b4 क्या होगा b स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब देखें आपके पास ये a स्क्वेयर, यहाँ पर आपके पास ए स्क्वेयर है और बी आपके पास बी स्क्वेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर तो आप ए माइनस बी ए प्लस बी के इक्वल नहीं होता,
ये माइनस हमने पढ़ा हुआ है कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल होता है। ए आपके पास क्या, ए आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इन, ठीक है। ये हमारे पास ए फोर माइनस बी फोर को हमने सॉल्व किया है, किसे, ए फोर माइनस बी फोर को हमने सॉल्व किया है। लेकिन आपके पास यहाँ पर ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है, दूसरा आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी है, तो इन दोनों को हम एक दफ़ा लिख देंगे, लिखेंगे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे ये हमारे पास दोबारा क्या बनेगा, ए पावर फोर माइनस बी पावर फोर। हमारे ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि हमने सॉल्व करके देखा से हमारे पास ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए फोर माइनस बी फोर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ए फोर माइनस बी फोर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ऑप्शन नंबर सी ए प्लस बी है और ऑप्शन नंबर डी ए माइनस बी है, वो भी हमारे पास रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हियर। लास्ट में क्लास में आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके पास फार्मूले हैं ए प्लस बी स्क्वायर के, ए माइनस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, लॉ की सारी प्रॉपर्टीज, सेट की सारी प्रॉपर्टीज, लॉ की सारी प्रॉपर्टीज, सेट की सारी प्रॉपर्टीज, साइन कॉस टेन जो एंगल है इनके मल्टीपल 0 30 60 90 पर आपको अपनी फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। क्यों ना कि अगर आप पेपर में बैठ के सॉल्व करने के लिए साइन 30 किस इक्वल होता है तो फिर आप एक ही क्वेश्चन कर सकेंगे, बाकी क्वेश्चन आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैंने आपको आज ही बता दिया, अभी आप लोगों के पास टाइम होगा कि आप लोग इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि फाइनल में जब आप अपना पेपर दे रहे हो तो वहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। Dear students and viewers, this was the very learned faculty member of Shaheen Leaders Academy who has given a very comprehensive lecture on today's mathematics test number 2. So I do hope that you must have learned a lot from the education which we are providing to you people. And inshallah, such lectures will be arranged for you people on the YouTube. And inshallah, this detailed lecture, no doubt, this video has become lengthy up to 51 minutes and more than 45 seconds. So inshallah, we will try our best to give you more videos in the futures regarding this mathematics subjects by the very learned faculty of Shaheen Leaders Academy, and we are proud of it that we are grooming the defenders of Pakistan. So gentlemen, today's lesson, today video is over, and inshallah from day tomorrow we shall continue such videos which are very helpful for our students. And inshallah the Shaheen Leaders Academy will be playing its pivotal roles to provide such a manpower which is very much diligent, hardworking, patriotic, very outstanding for the defense forces of Pakistan, and it would be our pride, and it would be ultimately the pride of the nation of Pakistan. So gentlemen, these words I shall request to the all viewers of Shaheen Leaders Academy to subscribe our channel. Who are new on our channel, you are requested to subscribe and share it with your all fellows, friends, college mates, groups, so that the other people who want to learn a lot and those who are facing such difficulties in their mathematics subjects, inshallah, from these lectures, they would learn a lot. Thank you very much. With this slogan, Pakistan Defense Forces Zindabad, Pakistan Paindabad.